اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز وقفے کے بعد لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ 339 AQI کے ساتھ نئی دہلی کا دوسرا نمبر۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز وقفے کے بعد لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا ہے، 339 AQI کے ساتھ نئی دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز وقفے کے بعد لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا، 339 AQI کے ساتھ نئی دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز وقفے کے بعد لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ 339 AQI کے ساتھ نئی دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز وقفے کے بعد لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 339 AQI کے ساتھ نئی دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز وقفے کے بعد لاہور میں ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا، 339 AQI کے ساتھ نئی دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز وقفے کے بعد لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا ہے، 339 AQI کے ساتھ نئی دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز وقفے کے بعد لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا ہے، 339 AQI کے ساتھ نئی دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند روز وقفے کے بعد لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 356 ریکارڈ کیا گیا، 339 AQI کے ساتھ نئی دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ ہواؤں کا رخ ایک بار پھر تبدیل ہونے لگا ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر سر فہرست ہے۔ آئندہ 2 سے 3 روز تک آلودگی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ علیم الحسن کہتے ہیں کہ فی الحال شہر میں بارش برسنے کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہوا کا رخ تبدیل ہونے سے اسموگ مزید بڑھے گی۔ مزید بتا رہی ہیں سامیہ سعید۔ جی سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایک بار پھر سے آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج پھر سے آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 593 تک جا پہنچی ہے، جو کہ تمام تر شہریوں کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث ہے۔ میرے ساتھ اس وقت چیف میٹرولوجسٹ علیم الحسن موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا، آلودگی کی شرح میں اضافہ گزشتہ دنوں ریکارڈ کیا گیا، مگر آج ایک بار پھر سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آلودگی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ ابھی دیکھیں، جو پچھلے 3-4 روز سے ہمارے ہاں نارتھ ویسٹرلی ونڈ کا پیٹرن چل رہا تھا نا، وہ رات سے اس کی رفتار میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ ابھی تقریباً ہوا نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ آج رات تک اس کی ڈائریکشن جو ہے نارتھ ویسٹ سے چینج ہو کے ساؤتھ ایسٹ ورڈ ہو جائے گی، جو ادھر دوبارہ سے پھر جو ہے اسموگ کی یا پولوشن پارٹیکل جو ہیں ان کو ایکومولیٹ کرنے کا باعث بنے گی، اور یہ پیٹرن جو ہے 2-3 روز تک پریویل کرے گا پنجاب کے میدانی علاقوں میں انکلوڈنگ لاہور۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل سے آنورڈ پھر سے دوبارہ سے اسموگ جو ہے وہ بڑھے گی، فضا میں آلودگی کی مقدار بڑھے گی، لیکن 2 یا 3 روز کے بعد انشاءاللہ پھر سے اس میں دوبارہ سے کمی آ جائے گی، نارتھ ویسٹرلی ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، پھر سے کرسٹل کلیئر سکائیز ہوں گے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس بھی کافی حد تک امپروو ہو جائے گا 25, 26, 27 ان دنوں میں انشاءاللہ۔ جی بالکل، ونڈ پیٹرن چینج ہونے کے باعث آج یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں ایک بار پھر سے فضائی آلودگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز تک جو ہے وہ آلودگی کی شرح میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ تاہم شہری بھی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے، جبکہ 25 نومبر کو جو ہے وہ آلودگی کی شرح میں کمی ریکارڈ کی جائے گی۔ تاہم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں تو بارش برسنے کے امکانات ظاہر کر دیے گئے ہیں، مگر تاحال لاہور میں بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی
इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए। अलबत्ता यही बताया जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में आलूदगी की शरह में इजाफा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जी ठीक है सामिया, शुक्रिया। औकात कार की खिलाफ वर्जी पर 57 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट सील कर दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की हर तहसील में बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तहसील मॉडल टाउन में 3, तहसील सिटी में 10, इकबाल टाउन में 10 दुकानें सील कर दी गई हैं। DC लाहौर का कहना है कि साफ और सेहतमंद माहौल के लिए सख्त इकदाम जारी हैं। मज़ीद बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। इमरान, बताइएगा। देखिए, स्मोक की रोकथाम के हवाले से जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। रात को 8 बजे मार्केट्स और 10 बजे रेस्टोरेंट्स डाइनिंग जो है वो बंद करवाई जा रही है। इस वजह से 57 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट्स औकात कार की हलावर्जी पर बंद किया गया। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की तरफ से तहसील माल्टन असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा यूसुफ ने 3 दुकानें सील की। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली ने 10, जबकि तहसील अलामा इकबाल टाउन और तहसील ख्वाजा उमर ने की क़यादत में 24 दुकानें सील की गई। इसी सिलसिले में तमाम जो तहसीलें हैं यहाँ पर क्रैकडाउन किया गया है, जिस पर DC लाहौर का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बच्चों और बुजुर्गों और बीमार अफराद को खासतौर पर स्मोक के मुजर से तसदात से महफूज रखें। इसी सिलसिले में शहरी किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में DC ऑफिस कंट्रोल रूम में रब्ता करें, जबकि व्हाट्सएप मैसेज या DC ऑफिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मैसेज या कंप्लेंट की सूरत में भी रब्ता कर सकते हैं। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया। स्मोक की वजह से तलबा का सप्लीमेंट्री इम्तिहान में ताख़ीर से पहुँचने का ये मामला है। फर्स्ट ईयर के ज़िमनी इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त न देने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में चेयरमैन इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। स्मोक की वजह से तलबा का सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में ताख़ीर से पहुँचने का ये मामला है। फर्स्ट ईयर के ज़िमनी इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त न देने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में चेयरमैन इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। स्मोक की वजह से तलबा का सप्लीमेंट्री इम्तिहान में ताख़ीर से पहुँचने का मामला, फर्स्ट ईयर के ज़िमनी इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त न देने का इक़दाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। आपको बताएं कि शिमला पहाड़ी और इतराफ़ के इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी है। मोटरसाइकिल, रिक्शा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। आज भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के वक्त 600 की हद उबूर कर गया था। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में स्मोक के तदारुक के हवाले से ग्रीन लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था और इस ग्रीन लॉकडाउन को 15 रोज़ से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। शिमला पहाड़ी और उसके अतराफ़ में लगाए गए ग्रीन लॉकडाउन पर जो है वो इब्तदाई तौर पर जो है अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया गया उस तरीके से, लेकिन बाद में जो है वो सख्ती करने के बाद ये ग्रीन लॉकडाउन पर अमल करवाया गया, जिसके तहत जो जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको इस शिमला पहाड़ी और उसके अतराफ़ की सड़कों में उसका दाखिला बंद किया गया, जबकि इसी के साथ साथ जितने भी चिंची रिक्शे हैं उनका भी दाखिला जो है वो बंद किया गया। जबकि इसी दौरान ख़तरनाक हद तक स्मोक पे बढ़ने के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में जो है वो ग्रीन लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन लगाया गया, जिसके तहत जो मार्केटें हैं वो 8 बजे तक बंद की गई, जबकि स्कूल, कॉलेज और जितनी भी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इस दौरान जो है वो बंद किया गया। जबकि स्मोक में बेहतरी के बाद जो है वो इस लॉकडाउन को जो है वो हटाया गया, जबकि लॉकडाउन तो हटाया जा चुका है स्मोक में बेहतरी के बाद, लेकिन ग्रीन लॉकडाउन जो है वो ताहाल लागू है। शिमला पहाड़ी जिसमें डेविस रोड, एम्प्रेस रोड और अजल्टन रोड समेत जो शिमला पहाड़ी से रेलवे की तरफ जाने वाली सड़क है उस पर भी जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है और ट्रैफिक वार्डन्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इन सड़कों पर खड़ी की गई है, ताकि जो स्मोक से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर आने से जो है वो रोका जा सके और इसी के साथ साथ जो चिंची रिक्शे हैं उन पर जो है वो पाबंदी जो है वो लगाई जा सके। जबकि अगर आज की सूरत हाल की बात की जाए तो आज भी शहर लाहौर का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। शुक्रिया ज़ैन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जेल रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। महकमा दाखिला ने जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैदियों की सज़ा के कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए हैं। जेल में कैदियों को सिर्फ कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सज़ा दी जा सकेगी। सुप्रिटेंडेंट या कोई ऑफिसर ज़ाब्ते के बरखिलाफ किसी कैदी को सज़ा नहीं दे सकेगा। मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा। जी हसन, बताइएगा। हसन से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जेल रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। महकमा दाखिला ने जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैदियों की सज़ा के कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए हैं। जेल में कैदियों को सिर्फ कवायद के मुताबिक सज़ा दी जा सकेगी।
पंजाब फूड अथॉरिटी के सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर में 5 फूड पॉइंट्स बंद, एक के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया। फूड पॉइंट्स को 15,97,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन सामने आया है। लाहौर जोन में 1620 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, जबकि 5 यूनिट बंद, एक मुकदमे का अंदराज करवाया गया। 15,97,000 के जुर्माने आयद किए गए। 82 नए लाइसेंस का इजरा किया गया। 960 लीटर मिलावटी दूध, 1200 किलो मुर्गियाँ बीमार मुर्गियाँ तलब की गई। न्याजी बस टर्मिनल के गर्दनवाब में 25 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, जिनको 7 को 1,70,000 के जुर्माने किए गए। टोरंटन मार्केट में 36 गाड़ियों और गोदाम में मौजूद 1 लाख किलो से जायद मुर्गियों की चेकिंग की गई, जिसमें नाकाबंदी के दौरान 5,56,000 लीटर से जायद दूध का मुआयना भी किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर मिलावट करने वालों के खिलाफ जो है शिकंजा तैयार किया गया है, जिसमें तलब करदा मिलावटी दूध और इसके साथ साथ बीमार मुर्दा मुर्गियां जो है मुख्तलिफ शॉप पर फरोख्त की जानी थी। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जुबैर का कहना है कि मुसाफिरों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोजाना की बुनियाद पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर मौजूद फूड पॉइंट्स की चेकिंग किए जा रहे हैं, जबकि बारहा इस्लाही नोटिस देने के बावजूद इस्लाह न करने पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। जालसाजी का मखरूद अंदाज जारी इश्तिहार तैयार करने पर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जबकि पंजाब की आवाम को सेहत बख्श ग़िज़ा की यकीनी फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया। सिख यात्रियों के वफ्द की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आमद। वफ्द में अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से आए सिख यात्री शरीक हुए। वफ्द को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का दौरा करवाया गया। सिख यात्रियों ने मजहबी मकामात पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात को खूब सराहा। मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर, बताइएगा। मुदस्सिर से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं सिख यात्रियों के वफ्द की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आमद। वफ्द में अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से आए सिख यात्री शरीक हुए हैं। मुदस्सिर से राबिता बहाल हुआ है। मुदस्सिर, बताइएगा। मुदस्सिर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। मुदस्सिर से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं सिख यात्रियों के वफ्द के पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आमद। वफ्द में अमेरिका, कनाडा और बरतानिया से आए सिख यात्री शरीक हुए। वफ्द को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का दौरा करवाया गया है।